Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start online lectures from today inshallah. So this will be our first online lecture due to the current situation in the world and in the country. So I wish you all best of luck for this and pray that we all be safe. I request you to follow the instructions by the government and stay inside, stay safe, and also to save our time we will study online, and I'll be giving you lectures using this YouTube, and then you can see the assignments and all other things for you in the Google Classroom, and you can comment in the Google Classroom section if you have any question or anything else. So we start with the classification and nomenclature of organic compounds. So we have done the first 3 lectures in the class in the last week when we studied about resonance and its rules and other topics. Now we move on to the classification of organic compounds and their nomenclature. First of all, what are organic compounds? The compounds in solid, liquid or gaseous state which contain carbon in their molecules are known as organic compounds. So this is the very simple definition. मतलब जिन compounds के अंदर कार्बन मौजूद होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इनकी. और we can say that there are a large number of organic compounds, and due to this big number, a proper systematic kind of nomenclature is required to understand the structure and the names of the compounds. अगर हमारे पास कोई proper system नहीं होगा नाम देने का compounds को, तो millions of organic compounds हैं जो उनको differentiate करना और उनके structures को समझना उनके नामों से ये possible नहीं होगा. इसलिए हम compounds को ये इस तरह के नाम देते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक खास स्कीम है. वो स्कीम क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं. So organic compounds can be classified broadly as 2 main classes. The one is acyclic or open chain, and the other one is cyclic ones, the closed chain or ring compounds. So let's move on to their classification in detail. If you look at this figure, you can see that the organic compounds, they can be divided into 2 main categories. The first one is open chain compounds, and then the cyclic compounds. If you go to the open chain compounds, they can further be subdivided into straight chain compounds and branched chain compounds. Straight chain compounds कौन से हैं? जिनमें सारे कार्बन एटम्स जो है वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. ब्रांच चेन्स कौन से होंगे? जिनके अंदर जो आपकी मेन चेन है उसके ऊपर ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं. तो ये हो गई ओपन चेन कंपाउंड्स की टाइप. द सेकंड टाइप इज द साइक्लिक कंपाउंड्स. Cyclic compounds can be of 2 main types, the one homocyclic and then the heterocyclic compounds. Homocyclic compounds कौन से होंगे? जिनके अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं. उस रिंग के अंदर जितने एटम्स हैं वो एक जैसे हैं, कार्बन एटम्स हैं या अदर एटम्स हैं. और हेटेरोसाइक्लिक कौन से हैं? जिनमें कार्बन के अलावा भी और एटम्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं. तो ये इनके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा और एटम्स भी मौजूद होंगे जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स and the aromatic compounds.
इनको हम फर्दर आगे डिटेल में देखते हैं, जिसके बाद आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि ये इनके एग्जांपल्स क्या हैं और कौन कौन सी इनकी फर्दर सब टाइप्स हैं। The first one is the alicyclic or open chain compounds. Open chain compounds जो हैं, these compounds are known as aliphatic compounds. They have branched or straight chains. So जो हमने टाइप्स पढ़ी कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक तो स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच्ड। तो ये आगे अब इनकी एग्जांपल्स देखें, जिसके बाद ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। So if you look at the examples, the first one is ethane. Ethane is the open chain or alicyclic compound, और इसकी सब क्लास में से फिर ये कौन सा होगा, स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड। इसमें देखें आपके कोई ब्रांच नहीं है, इसकी चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ईथेन इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अगर हम देखें आइसोब्यूटेन को, आइसोब्यूटेन के अंदर आप देखें कि 4 इसके कार्बन्स हैं और इसके अंदर ये एक ब्रांच मौजूद है, जो मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर इसको रखेंगे हम आइसोब्यूटेन को। इसी तरह और एलिसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनमें सिर्फ एल्केन्स या अल्काइंस नहीं आती, इसके अलावा भी जो कंपाउंड्स हैं वो ओपन चेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। नेक्स्ट is the alicyclic compounds in which all the atoms are similar, that is, you may call them homocyclic compounds. These are the cyclic compounds which contain a carbon atom which contain carbon atoms connected to each other in a ring. इसमें आप देखें कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स थे उनमें कार्बन्स की एक ओपन चेन थी, जहाँ पे जो दो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो आके आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ओवरऑल एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनकी जो चेन है वो क्लोज हो जाती है, वो ओपन चेन नहीं रहती। तो इसलिए इन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स में आप देखें साइक्लोप्रोपेन, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। साइक्लोहेक्सेन, हियर 6 कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन अ रिंग। और साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हमने इसको साइक्लोहेक्सीन का नाम दिया है। इनका नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ये चीजें आपको मजीद थोड़ी सी क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, इनके अंदर एक एटम या एक से ज्यादा एटम कार्बन के अलावा कोई और भी होगा, जिसकी वजह से हम इन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड थायोफीन, इनको आप देखें। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इज अ 5 मेंबर्ड सिस्टम, और इसके अंदर एक एटम जो है वो नॉन कार्बन यानी कि ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह थायोफीन है, थायोफीन में आप देखें कि इसके रिंग के अंदर भी एक डिफरेंट एटम मौजूद है देन कार्बन, इसलिए ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में शामिल है। नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। Aromatic compounds, they are a special type of compounds which contain benzene and other ring related compounds. इसमें सबसे important जो है वो इस स्टेज पे आपके लिए बेंजीन है। बेंजीन रिंग जिन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होगा उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। बेसिकली एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी बियॉन्ड और ब्रॉड है इसके, लेकिन दैट इज नॉट इन द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so we'll discuss it later when required. इस स्टेज पे आप लोगों को यही समझना है कि बेंजीन जो है वो जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होगा उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, और इनके अंदर भी इसी तरह हेट्रो एटम्स हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिस तरह पिरिडीन है जिनके अंदर हेट्रो एटम्स हैं और वो एरोमेटिक भी हैं। तो इनकी जनरल एग्जांपल्स
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेंजीन, एनिलीन, इसमें बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप मौजूद है, एंड नेफ्थलीन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ तक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई. अब हम मूव करेंगे टू दी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये हमारा सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद, कि हम जितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम देने का क्या एक तरीकाकार है, और कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हम उनको नाम देंगे और उनको अच्छी तरह से पहचान सकेंगे. So, the IUPAC nomenclature of organic chemistry is a method as recommended by the International Union of Pure and Applied Chemistry. ये जो साइंटिस्ट की एक यूनियन है जिसमें वो सारी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखें केमिस्ट्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें और ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको जो नाम इनके रखते हैं हम, वो स्टैंडर्ड नेम हों इंस्टेड ऑफ एवरी कंट्री यूजिंग देयर ओन नेमिंग स्टाइल, so that everyone in the world can understand those names. So ideally, every possible organic compound should have a name from which an unambiguous structural formula can be created. तो इसका मकसद यही है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम एक स्पेसिफिक और सेपरेट होना चाहिए, जो कि उस नाम का दूसरा कोई कंपाउंड ना हो दुनिया में. तो जब हर कंपाउंड का एक यूनिक नेम होगा तो उस नेम की मदद से हम बगैर किसी एम्बिग्विटी के एक उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर सकेंगे उस नाम को देख के, जिससे हमें ये चीज पता चलेगी कि ये कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. सो वी स्टार्ट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर. सबसे पहले हम IUPAC के बेसिक और कॉमन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. मतलब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए आपके पास जो एक सेट ऑफ रूल्स है वो क्या है. वो बेसिक रूल्स हमेशा वही रहेंगे और डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के हिसाब से हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उन्हीं बेसिक रूल्स की रोशनी में मुख्तलिफ क्लासेस को भी आगे नाम देंगे और स्पेसिफिक एग्जांपल्स को हम फिर हर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस और अल्कोहल्स एटसेट्रा. तो जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सारों का सेम होगा. तो सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल की तरफ आएंगे और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वी यूज अ नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू डिस्क्राइब द टाइप एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड्स. सो प्रीफिक्सेस क्या होंगे? प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या वो चीजें होंगी, वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स के पीछे हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, जिस तरह डाई, ट्राई, टेट्रा, टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स के अपने नाम भी. ये सारी चीजें प्रीफिक्सेस में आएंगी. ये जो पेरेंट नेम है कंपाउंड का उससे पहले आएंगी. और सफिक्स क्या होगा? सफिक्स लास्ट नेम या एंडिंग और पेरेंट चेन होगी या पेरेंट कंपाउंड होगा. एक्चुअली हम कंपाउंड को अगर उसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम किसकी बेस पे देंगे. तो उसके लिए खास सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. तो अभी हम मेजर स्टेप्स की तरफ आते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए इंपॉर्टेंट हैं. So step number one is identification of the parent hydrocarbon chain. This chain must obey the following rules in order of precedence. अब सबसे पहला काम जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसको तलाश करना है. पेरेंट चेन वो होगी कि जिसकी बेस पे जिसको हम मेन नाम देंगे और बाकी जो उसके ऊपर ब्रांचेस होंगी उनको हम प्रीफिक्सेस में एडजस्ट करेंगे. मतलब वो पेरेंट कंपाउंड का हिस्सा नहीं होगी, वो उसके ऊपर ब्रांचेस होंगी. तो जो पेरेंट चेन है उसको डिटरमिन करने के लिए ये जो रूल्स नीचे लिखे हुए हैं
इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है जी, इट शुड हैव द मैक्सिमम लेंथ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन्स बन रही हैं, एक में 7 कार्बन आ रहे हैं और एक में 8 कार्बन आ रहे हैं, तो आपको 8 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी है ताकि वो एज अ पेरेंट चेन होगी और जो दूसरा एक कार्बन एटम बचेगा वो उसके ऊपर एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम उसको कंसिडर करेंगे। The second rule is it should have the maximum number of substituents of the suffix functional group. By suffix, it is meant that the parent functional group should have a suffix. तो दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर जो suffix functional group है, यानी कि जो parent functional group जिसको हम जो कंपाउंड की जो क्लास कंसिडर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इसी चेन के ऊपर होने चाहिए। अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन चेन्स हैं तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सफिक्स यानी कि जो पेरेंट हमारा कंपाउंड है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, उसके सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों। नेक्स्ट इज इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इफ देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स इन योर स्ट्रक्चर, the parent chain you are selecting must have the maximum number of multiple bonds. डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स अगर आपके कंपाउंड में मौजूद हैं तो फिर आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है उसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड्स उसके अंदर आने चाहिए। ये उसका नेक्स्ट रूल है। एंड द लास्ट वन इज इट शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। तो जो चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड्स भी होने चाहिए। ठीक हो गया? ये जो सिंगल बॉन्ड्स सबसे ज्यादा आपने मेन चेन के अंदर कंसीडर करने हैं। ये स्टेप नंबर 1 था जो कि कॉमन और बेसिक प्रिंसिपल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, उनका। Second is the identification of the parent functional group, if any, with the highest order of precedence. ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का एक टेबल प्रोवाइड करूंगा मैं आपको एंड पे, जिसमें आपने देखना है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको एज अ पेरेंट कंपाउंड कंसिडर करना है और बाकी किन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। तो इनका एक टेबल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा आपके कंपाउंड में। तो इसमें आपने बेसिकली वही सिलेक्ट करना है जो कि मेन आपका कंपाउंड की क्लास बनेगी। अगर मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड है, तो आपने किसको मेन कंपाउंड रखना है और किनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। The third one is identification of the side chains. Side chains क्या है? Side chains are the carbon chains that are not in the parent chain but are branched off from it. अब आपने जो मेन पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या है कि साइड चेन्स को भी आपने देखना है। अब उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स लगी हैं वो पेरेंट चेन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एज अ फंक्शनल ग्रुप या एज अ ब्रांच चेन उसके ऊपर कंसिडर होंगी और उनको हम उसी तरह से नाम भी देंगे। अच्छा जी, the next one is identification of the remaining functional groups if any and naming them by their ionic prefixes. अब पहले तो हमने जो कार्बन चेन्स थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया, हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं या सिंपल कार्बन चेन्स। नेक्स्ट है कि कोई और फंक्शनल ग्रुप्स अगर बच गए हैं, जिस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड है या ऑक्सो ग्रुप है, तो इनको भी आपने उसके अंदर नाम देने हैं, एज अ ब्रांच इनको नेम देने हैं। फॉर एग्जांपल, और इनके आयनिक प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। जैसा कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको हमने डैश OH ग्रुप है तो इसको हाइड्रोक्सी कहना है। इसी तरह O डबल बॉन्ड O है तो उसको ऑक्सी एंड सो ऑन। इसमें थोड़ी सी मजीद जो है वो आगे डिटेल है 4th स्टेप के अंदर कि डिफरेंट साइड चेन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स विल बी ग्रुप्ड टुगेदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारे पास जो साइड चेन्स हैं और फंक्शनल ग्रुप्स हैं
जो कि मल्टीपल होंगे, तो उनको हम कैसे अरेंज, उनमें पहले किसको रखना है नाम के अंदर और बाद में किसको रखना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि उनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें और उनके साथ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा ये हम यूज कर सकते हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल। लेकिन इधर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जब आप अल्फाबेटिकली कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर प्रीफिक्स इंक्लूड नहीं होगा। The prefix will not be included while considering two substituents for alphabetical order. For example, आप देखें कि ethyl और dimethyl है, तो इसमें से पहले कौन आता है? पहले तो D आता है, लेकिन डाई को हम कंसिडर नहीं कर रहे, हमने मिथाइल के M को और इथाइल की E को देखना है। तो जो इसमें पहले आएगा फिर वो कौन सा होगा? M और E में से कौन सा पहले है? E। तो ethyl will be before the methyl, so ethyl को आप डाइमिथाइल से पहले रखेंगे। इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी है और ethyl है, उसमें से ethyl पहले आएगा क्योंकि E comes first before the H। और इस इनमें से किसी केस में डाई ट्राई ये हमने कंसिडर नहीं किया। The fifth rule is fifth rule says that identification of double or triple bonds in the molecule। अब हमने जब ये पीछे सारे स्टेप्स कर लिए, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कर ली, उसके ऊपर ब्रांचेस आइडेंटिफाई कर ली, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं कि पेरेंट चेन के अंदर कितने हैं। The next step would be the numbering of the chain। ये सारा कुछ करने के बाद हमने जो अब पेरेंट चेन है उसको नंबर देना है। अब बेसिकली आपने नंबर कैसे देना है, उसकी 2 डिफरेंट साइड्स होंगी और किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपने दोनों साइडों की नंबरिंग को चेक करना है, पहले लेफ्ट और राइट उसका नंबर करके, फिर राइट और लेफ्ट नंबर करके, और देखना है कि कौन सी नंबरिंग इन रूल्स को फॉलो कर रही है। ये जो नीचे 3 सब बुलेट्स हैं इनको हमने फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज the chain has the lowest number to the carbon to which the suffix substituent is directly attached। अब आपने देखना है कि suffix substituent यानी कि जो पेरेंट आपका क्लास ऑफ कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिल ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन है, तो जो सफिक्स यानी कि जो पेरेंट आपका मॉलिक्यूलर ग्रुप है वो जिधर अटैच्ड है उस कार्बन को सबसे स्मॉल नंबर मिलना चाहिए। मतलब अगर एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और आप उस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर कर रहे हैं, तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, दूसरी साइड से नंबरिंग नहीं करनी। The second one is the carbon chain has the lowest number to the carbon attached to the suffix multiple bonds। अगर multiple bonds हैं, अल्कीन या अल्काइंस हैं, तो उस डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। Similarly, the chain has the lowest numbers to the substituents for prefixes। अगर दोनों साइड से एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि एक जगह पे कहीं आ रहा है चेन में, नियर द मिडल ऑफ द चेन, तो अब आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि उस सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिले, उसको छोटा नंबर मिले, तो उस साइड से आपने नंबरिंग करनी है। एक साइड से अगर उसका नंबर 5 आ रहा है, दूसरी साइड से 4 आ रहा है, तो आपने 4 वाली साइड से नंबरिंग करनी है। ये ऊपर वाले रूल्स को डिस्कार्ड किए बगैर, मतलब इसी ऑर्डर के अंदर आपने इनको देखना है रूल्स को। मतलब अगर कार्बोक्सिल ग्रुप है तो उसको प्रेफर करना है ओवर द सब्स्टिट्यूएंट, या इसी तरह पेरेंट कोई और ग्रुप है तो वो प्रेफर होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट की जो बारी है या इसका ऑप्शन है ये लास्ट में आएगा। The seventh principle is numbering of the various substituents and bonds। If there is more than one of the same type of substituent or double bond, a prefix is added showing how many there are। Like अगर आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं, जिस तरह 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आपने उसको डाई मिथाइल कहना है, 3 है तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल।
तो इस तरह से आपने ये प्रीफिक्स यूज करने हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो दैट विल बी अ डाइईन, अगर 3 होंगे तो ट्राइईन एंड सो ऑन। If there are two side chains with the same alpha carbon, अगर 2 साइड चेन्स आ रही हैं एक ही कार्बन के ऊपर, जो अल्फा द फर्स्ट डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, उनका पहला डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो है वो सेम है, एक ही के ऊपर 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऐड हैं, तो फिर आपने मतलब 2 सिमिलर ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं और दोनों एज अ ब्रांच कंसिडर हो रहे हैं, तो आपने फिर उनको इस तरह से लिखना है। ये फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे 3 ग्रुप्स थे तो उसने 2 2 3 ट्राई मिथाइल लिखा है। मतलब 2 2 का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे और फिर एक कार्बन नंबर 3 पे भी मिथाइल था तो हमने उनको इकट्ठा कर दिया है। तो उसको आपने नंबर को कैसे देखें, रिपीट किया, अगर एक ही कार्बन पे 2 थे तो हमने नंबर को 2 दफा लिखा। ये चीज आपने जहन में रखनी है। When the main functional group is a terminal functional group, a group which can exist only at the end of the chain, like formyl and carboxyl group, there is no need to number it. एक और important चीज है कि अगर main functional group आपका terminal है, मतलब वो आ ही एंड पे सकता है, वो सेंटर में नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या फॉर्माइल ग्रुप है, ये चेन के सेंटर में नहीं आएगा, ये किसी एक एंड पे आएगा। तो उस जब ऐसा ग्रुप है जो कि सेंटर में आ ही नहीं सकता तो उसको फिर नंबर देना मस्ट नहीं है। मतलब आपको 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कहने की जरूरत नहीं होगी, इसके बगैर वो अंडरस्टूड है कि that will be 1 because it cannot come in the middle of the chain, it will be at the end of the chain। तो ये चीज अंडरस्टूड होगी। सो ये सारे जो स्टेप्स थे और ये रूल्स थे, ये जब हम इनकी तरतीब में कंपाउंड को वो हमने सारा कुछ सेट कर लिया तो फाइनल अरेंजमेंट यानी कि फाइनल उसका नेम जो लिखेंगे वो कैसे होगा, वो इस तरह से लिखना है। अब ये जो रूल है ये आपको बता रहा है कि आखिरी स्टेप जो आपने इन सारी चीजों को अरेंज कैसे करना है, एक सिंगल नेम की शक्ल उसको कैसे देनी है। तो फर्स्ट चीज क्या है इसमें कि ग्रुप ऑफ साइड चेन्स एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स विद द नंबर्स डिस्कस्ड इन स्टेप 3। जो स्टेप 3 में हमने पीछे नंबरिंग डिस्कस की थी, जो साइड चेन्स की नंबरिंग है या उनके फंक्शनल ग्रुप्स की नंबरिंग है वो लिखनी है आपने, और यानी कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स और वो उनके नंबर वो पहले साथ लिखने हैं आपने, 2 2 3 डाई ट्राई मिथाइल 6 हाइड्रोक्सी फॉर एग्जांपल, इस तरह से आपने ये चीजें सबसे पहले लिखनी है। प्लस प्लस का मतलब इसके साथ क्या ऐड करना है आपने, प्रीफिक्स ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है लाइक 2 कार्बन की है, 3 की है, 4 की है, उसका प्रीफिक्स लिखना है। फॉर एग्जांपल इथ वुड बी फॉर 2 कार्बन लाइक इथेन एंड द नेक्स्ट इज इसके बाद जो प्लस है, you have to write the double and triple bonds with numbers or simple ane if it is an alkane, if there are no double bonds or triple bonds। तो और at the end आपने क्या लिखना है, primary functional group suffix with numbers, जो कि आपका actual जिसको आप parent functional group consider कर रहे हैं उसको at the end लिखना है। और यहाँ पे एक जो टर्म है, whenever it says with numbers, it is understood that between the word and the numbers the prefixes are used। अब मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि डबल बॉन्ड को नंबर के साथ लिखना है, लाइक 2 3 डाइईन, मतलब कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर अगर डबल बॉन्ड्स हैं, सॉरी 2 और 4 आप कह लें, इसके ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं तो आप उनको डाइईन लिखेंगे, 2 4 ईन नहीं लिखेंगे। ये डाई इज अंडरस्टूड, मतलब ये अब आपको बार बार नहीं बताया जाएगा कि ये इसके अंदर प्रीफिक्स भी यूज आपने करने हैं नंबर के हिसाब से। तो अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो डाइईन, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो डाइआइन, ये चीजें उसके अंदर शामिल होंगी। द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ पंक्चुएशन, यानी कि ये जो नंबर्स इतने हमने जमा कर लिए हैं इनके अंदर हमने पंक्चुएशन यूज करनी है जिससे हमें इन नंबर्स का फर्क पता चले। अदरवाइज अगर ये नंबर इकट्ठे लिखे होंगे लाइक 255, यू मे से 255, तो इनको आपने
पंक्चुएशन से सेपरेट करना है कि एक जैसे नंबर्स हैं, जैसे 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल अगर था, यानी कि कार्बन नंबर 2, 5 एंड 5, यानी कि 2 पे एक मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल्स हैं, तो 2, 5, 5 को सेपरेट कैसे करना है आपने, यूजिंग अ कॉमा like this. It will become 2, 5, 5. अच्छा, next is hyphens are put between a number and a letter. अब numbers के आगे जो इसका नाम होगा या letter होगा वो start होगा, उसके और नंबर के दरमियान आपने हाइफन यूज करना है, ये एक डैश यूज करनी है छोटी सी। जिस तरह 255 ट्राई मिथाइल हेप्टेन अगर होता तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट बिकम्स 2, 5, 5 हाइफन ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो ये हाइफन नंबर और लेटर को सेपरेट करेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सक्सेसिव वर्ड्स आर मर्ज्ड इनटू वन वर्ड। जो सक्सेसिव इकट्ठे वर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये दो अलग वर्ड्स हैं, इनको आपने स्पेस देके नहीं लिखना, इनको ट्राई मिथाइल हेप्टेन इकट्ठा लिखना है, क्योंकि IUPAC uses one word names throughout. There are no spaces between these prefixes and the parent name. तो आपने जो फाइनल उसका पेरेंट नेम है उसको भी इसी तरह बगैर स्पेस के लिखना है। देखें पीछे भी हमने स्पेस नहीं यूज की, डिफरेंट जगहों पे कॉमास और हाइफन्स यूज किए हैं। तो इसी तरह आपने नाम के अंदर स्पेसेस नहीं यूज करनी। So these were all the basic principles of IUPAC nomenclature, which are general and they can be applied to any class of organic compounds. अब हम specifically आगे move करेंगे, इनको details के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स का nomenclature पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में alkanes, alkenes and alkynes ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम देख लें कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जो कार्बन चेन है उसको हम कैसे उसके नंबर के हिसाब से उसका नाम कैसे रखते हैं। अगर एक होगा तो उसके पीछे प्रीफिक्स क्या आएगा, मिथ, यानी कि मिथेन। 2 होगा तो इथ, इथेन। 3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये जो प्रीफिक्सेस हैं 1 से 10 तक, ये इससे भी ज्यादा हैं। अगर आपको 10 कार्बन चेन से बड़ा कंपाउंड कोई नंबर करना पड़ जाए तो आप उसके आगे मजीद जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, इसके आगे भी नाम की तरतीब आपको मिल जाएगी। तो अभी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे जितने ये यहाँ पे दिए गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 कार्बन चेन होगी और वो एल्केन होगी तो पेंटेन, ठीक है। इन रूल्स को हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। So the first one is the nomenclature of alkanes. Alkanes में क्या है कि straight chain alkanes take the suffix -ane, मतलब जो straight chain alkanes होंगे उनके अंदर just at the end आपने ane लगाना है, ठीक है, जिससे जाहिर होगा कि ये alkanes हैं। And they are prefixed depending on the number of carbon atoms in the chain following the standard rules. So जो हमने rules पीछे पढ़े उनको अगर आप देखें तो उनके ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेट चेन। लाइक अगर 5 कार्बन थे तो पेंट एन, आगे एन एट द एंड आपका आएगा एल्केन्स के लिए। अच्छा जी, अब अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट एल्केन इज CH4, दैट इज कॉल्ड मीथेन। C एक कार्बन है तो मिथ इसका प्रीफिक्स था और एन बिकॉज इट्स एन एल्केन, मीथेन। और 9 कार्बन वाली जो होगी उसको क्या कहेंगे, ये देखें यहाँ पे ये कंपाउंड CH3 देन CH2 होल 7 एंड CH3, इसमें टोटल 9 कार्बन हैं और ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इसको हम 9 के लिए था नोनेन, नोन एंड एन, ठीक हो गया। अगर 10 होते तो डीकेन। अच्छा जी, इसके बाद आता है साइक्लिक एल्केन्स। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन ना हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, तो फिर क्या करना है, फिर सिंपली उसके साथ आपने साइक्लो का प्रीफिक्स यूज कर लेना है शुरू में। फॉर एग्जांपल C4H8 को अगर देखें, इसको आपने ब्यूटीन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के ये अंदाजा नहीं लगाना शुरू कर देना कि ये एक एल्कीन है।
जो साइक्लिक ब्यूटेन है उसका भी ये फार्मूला होता है C4H8। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। अब आप देखें 4 कार्बन थे, तो ब्यूट जो है इसका हमने जो प्रीफिक्स था वो यूज किया, और एन बिकॉज इट्स एन अल्केन, और पीछे जो इसके दूसरा वर्ड हमने लगाया साइक्लो, क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर C6H12 है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। Cyclo because it's a cyclic, hex for 6 carbons, and ane because it's an alkane। तो इस तरह से ये जो बेसिक 2-3 रूल्स हैं, अगर हम पीछे जो अभी हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं उनको ध्यान में रखें, तो एल्केन्स के ऊपर ये एडिशंस हैं सिर्फ, जिनकी मदद से हम उनको नाम दे सकते हैं। अगर आप देखें ब्रांच चेन एल्केन्स को, तो उनको स्ट्रेट चेन आपने पहले उनके अंदर फाइंड करनी है और फिर ब्रांचेस को साथ नंबरिंग कर लेनी है। They are prefixed with a number indicating the carbon the group is attached to, counting from the end of the alkyl chain। इसमें क्या करना है कि हमने उसी तरह पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड, सबसे ज्यादा कार्बन आ जाएं, तो उसको आपने पेरेंट नंबर देना है, और साथ जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी नंबर देना है कि कौन से कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कंपाउंड को देखें CH3 ट्वाइस CH3, तो ये बेसिकली इसमें कितने कार्बन हैं? 2 ये कार्बन, 3, 4, इसके अंदर 4 कार्बन हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। अगर आप इसको IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत नाम दें तो फिर ये ब्यूटेन नहीं हो सकती। क्यों? कि आप देखें कि इसके अंदर ये जो येलो हाईलाइटेड आप एरिया देखें, तो जो पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन हैं। ये एक जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये एज अ ब्रांच एक्ट करेगा, ये पेरेंट चेन में नहीं है। तो इसको आप क्या नाम देंगे? 2 methyl, ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है, प्रोपेन, बिकॉज देयर आर 3 कार्बन्स। तो आपने नंबरिंग पहले किसी एक एंड से करनी थी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर आप देखें कि चाहे हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट इज सेकंड पोजीशन, अगर राइट साइड से करें तो भी 1 2 3। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर तो चूंकि नंबरिंग जिस साइड से मर्जी करें आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक साइड इसकी डिफरेंट होती, वो सिमेट्रिकल ना होती ये दोनों साइडों से, तो फिर हमने उधर से नंबरिंग करनी थी जिधर से इस मिथाइल को स्मॉलर नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या होगा? 2 methyl propane। If there is an ambiguity in the position of the substituent depending on which end of the alkane chain is counted as 1, ये जो अभी पहले बात डिस्कस की है कि अगर ये देखें नीचे जो कंपाउंड्स हैं आपके पास, इसमें अब चेन एक साइड से उसकी लेंथ डिफरेंट है देन ऑन द अदर साइड बाय लुकिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड है लेफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर, और अगर राइट स्ट्रक्चर में देखें तो ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच्ड है। तो अब आप नंबरिंग ऐसी सिचुएशन में कहां से करेंगे? तो आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिले। फॉर एग्जांपल अगर आप ये राइट स्ट्रक्चर पहले देखें, हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 इसमें सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 के ऊपर आ रहा है। अगर आप लेफ्ट स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें अगर नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से करें तो सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट कार्बन नंबर 2। तो हमने इसको कैसे यहाँ पे नाम देना है कि कार्बन नंबर 2 वाले को कंसिडर करना है 2 methyl butane। We cannot say 3 methyl butane because that will be incorrect numbering। तो इसका करेक्ट नेम क्या होगा? 2 methyl butane। Next, if there are multiple side branches of the same size alkyl group, their positions are separated by commas and the group prefixed with ditri, tetra, etc. depending on the number of branches। ये जो पहले हमने जनरल रूल्स के अंदर चीज पढ़ ली है कि अगर एक से ज्यादा साइड ब्रांचेस हों, एक जैसी हों, तो फिर आपने कैसे उनको नाम देना है। फॉर एग्जांपल आप इस कंपाउंड के अंदर देखें, आप
नियोपेंटेन है ये इसका कॉमन नेम। अगर हम इसमें पेरेंट कार्बन चेन देखें तो वो 3 कार्बन हैं, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इधर, और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसको आपने नाम कैसे देना है, 2,2 डाई मिथाइल। कार्बन नंबर 2 को हमने रिपीट किया एक कॉमा के साथ, यानी कि 2,2 डाई मिथाइल। इट मीन्स के कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। प्रोपेन वुड बी द पेरेंट चेन, सो दैट विल बी इट्स IUPAC नेम। अब अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में उनको अरेंज करना है, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया जनरल रूल्स के अंदर। तो इनमें कॉमास और हाइफन्स को कैसे यूज़ करना है, इसमें आप देखें ये जो कंपाउंड नीचे दिया हुआ है, इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सबसे पहले हमने देखनी है। अगर तो आप लेफ्ट स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन्स की आ रही है। तो अगर राइट स्ट्रक्चर में देखें, इसमें हम एक डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन बी सेलेक्ट कर सकते, डिफरेंट चेन बी देख सकते हैं जिसमें 5 कार्बन्स हैं। तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे इनमें से, 6 वाली, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हो। उसमें उसके बाद फिर आपने नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जब नंबरिंग कर ली तो अब आपने देखा कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन नंबर 4 पे मीथाइल ग्रुप है। अब आपने ये देखना है कि इथाइल या मीथाइल में से हम पहले किसको लिखेंगे। तो इथाइल का ई है, मीथाइल का एम है। ई पहले आता है एम से, लिहाजा हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो इसका नाम फिर क्या होगा, 3 इथाइल, उसके बाद हाइफन 4 हाइफन मीथाइल हेक्सेन। अब मीथाइल और हेक्सेन के दरमियान स्पेस नहीं है। आप देखें कि 3 इथाइल के बाद लेटर और नंबर को सेपरेट करने के लिए हमने हाइफन यूज किया, और फिर 4 के बाद हमने दोबारा हाइफन यूज किया जो कि लेटर और नंबर को सेपरेट करता है। 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमर्स यूज करते थे, और लेटर और नंबर को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब अगर एल्कीन्स को आप देखें तो उनके अंदर बेसिक सारे रूल्स वही होंगे। जो सफिक्स होगा वो एन की बजाय अब ईन होगा, -ENE ये जो लिखा हुआ है, यानी कि आपने सफिक्स ईन एट द एंड ऑफ द चेन यूज करना है। और बाकी जो है वो इनफिनिक्स नंबर मीन्स के सेंटर में आपने नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है इन से पहले कि ये कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 पे 2 पे 3 पे। ये आगे आप एग्जांपल देखें तो फिर हम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले वाला कंपाउंड देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये एक एल्कीन है। इसमें टोटल कार्बन कितने, 4। तो दैट मीन्स कि ये एक ब्यूटीन है। अब इसको आपने नाम कैसे देना, इसके 2 डिफरेंट तरीके हैं और दोनों करेक्ट हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर पेरेंट चेन को नाम दें ब्यूट, ब्यूट इज द प्रीफिक्स फॉर 4 कार्बन्स। तो उसके बाद आपने इनफिक्स्ड नंबर इधर यूज किया कि एल्कीन जो ईन है, डबल बॉन्ड है, वो कौन सी पोजीशन पे है। तो वो पोजीशन नंबर 1 पे है, हमने उस साइड से नंबरिंग की है। तो ब्यूट 1 ईन, या आप इसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा कंपाउंड देखें, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और ये ब्यूट मतलब इसका भी जो मेन चेन है वो ब्यूट है, 4 कार्बन हैं। तो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो हमने उसको कैसे अब नेम दिया, अब ब्यूटा 1,3 डाईन। अब यहाँ पे हमने ए साथ ऐड करना है जब 2 होंगे या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स या इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। तो अब हमने ब्यूट के साथ ए भी ऐड किया, ब्यूटा ब्यूटा 1,3 डाईन और 1,3 ब्यूटा डाईन। ये दोनों हिसाब से ये नाम करेक्ट होगा एल्कीन्स का। The next one is the nomenclature of alkynes. Alkynes are named using the same system.
बाकी सारे रूल्स इसके भी वही सेम होंगे विद द सफिक्स आइन एट द एंड दैट इंडिकेट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आपने जो लास्ट सफिक्स है वो एन या इन की बजाय आइन YNE यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड आपको नीचे नजर आ रहा है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। दैट मीन्स कि एक कार्बन इसका इस साइड पे है और एक कार्बन इस साइड पे है। तो इसका नाम क्या है? इथाइन। इथ फॉर the prefix and ine for the alkyne। इसी तरह इसका कॉमन नाम इथाइन का क्या है? एसिटिलीन है। दूसरा कंपाउंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन में आप देखें कि ये 3 कार्बन हैं, हम उसको देखें 1 2 और 3। तो ये प्रोपाइन है। अब चूंकि इसमें 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये एक तो आना ही टर्मिनल पोजीशन पे है और दूसरा नंबरिंग भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो उसको 1 प्रोपाइन कहने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज सिंपली प्रोपाइन। तो अगर ऐसे इससे बड़े साइज के कंपाउंड्स हों जिनमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो फिर हमने उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना है। वो ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ये किस पोजीशन पे अटैच्ड है। So this was all about the nomenclature of hydrocarbons, alkanes, alkenes and alkynes। जो इससे फर्दर डिफरेंट क्लासेस हैं उनके नॉमेनक्लेचर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज के लिए कुछ आपको कंपाउंड्स देने हैं जिनकी आप खुद अब नॉमेनक्लेचर करेंगे इन सारे रूल्स को अप्लाई करके, और उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एग्जाम टाइप मटेरियल हो गया कि ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि एग्जाम इन्हीं में से आएगा। आपको कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो इन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके आपको उसका नाम लिखना आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनको आपने जो ये सेट ऑफ रूल्स हमने पढ़े हैं इनकी मदद से इनके नाम देने हैं। तो इनके आंसर्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह उस पर गूगल क्लासरूम पे फिर पोस्ट कर दूंगा, लेकिन पहले आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।